chlorine 17, bromine 35, iodine 53, astatine 85. Electronic configuration. Fluorine atomic number 9, 1s2, 2s2, 2p5. Chlorine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bromine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Iodine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p5. Astatine 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 and 6p5. Fluorine, chlorine, bromine, iodine belong to 17 group. तो इन सब के एटम्स के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिट and 5 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिट. Then general electronic configuration is ns2 np5. N is the outer cell from 2 to 6. General electronic configuration. Of halogen family. Second point is oxidation number. Fluorine atomic number 9, 1s2, 2s2, 2p5. Outer cell second. S contain 2 electrons and p 5 electrons. S is stable configuration and p is unstable due to S2 and 2p5. अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो p का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2p5 to 2p6 हो जाएगा. Then fluorine show always -1 oxidation number or oxidation state. तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7. Outer cell contain 7 electron, 2 in s orbit, 5 in p orbit, and 3d is completely vacant. 3s2, 3p5, 3d complete vacant. Chlorine have 7 electron in their respective outer cell. It required is 1 electron for octet complete. Then oxidation number generally -1, but in the presence of the 1 unpaired electron, it forms covalent bond. Then oxidation number +1 also.
तो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो -1। यदि वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है तब +1 ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन आल्सो शो +3 oxidation number due to the 1 electrons promote from 3p2 backend d 3d orbital. 3 electrons unpaired, then oxidation number +3. तो p से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वैकेंट 3d ऑर्बिट में पहुंच गया। अभी भी आप देख रहे हैं कि p में अभी एक इलेक्ट्रॉन पेयर और भी है। Then 1 electrons again jump from 3p2 vacant d orbital. Then total number unpaired electrons here 3 in p, 2 unpaired electrons in d orbital. Then oxidation number +5. इसका मीन्स है कि क्लोरीन की आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर है। इसका मतलब सिंपल सा होगा कि वो 5 बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। 1 electrons pair is also 3s orbit. It also promote from 3s to vacant 3d orbital. Then total number of electrons unpair here 7. 3s1, 3p3 and 3d3. Here oxidation number of chlorine +7. एक कंपाउंड 11th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया है, कौन सा? IF7, जहां आयोडीन की कितनी होती है? +7 होती है ना। वैसे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है देखिए Cl2O7, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन हियर +7। इसका मीन्स है कि क्लोरीन -1, 0, +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन नंबर के कंपाउंड को फॉर्म करता है। ब्रोमीन -1, 0, +1, +3, +5 और कभी कभी +7 के। आयोडीन -1, 0, +1, +3, +5 और +7 क्यों नहीं जनरली होगी? ड्यू टू इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। बट इन IF7 फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो +7। इसका मीन्स है हैलोजन एक्सेप्ट ऑफ द फ्लोरीन सो different type oxidation number, it start from -1 to +7 oxidation number. Third properties of halogen family is electronegativity. Electronegativity decrease from fluorine, chlorine, bromine and iodine. Electronegativity decrease from up to bottom in a group due to atomic size increase. Fluorine is the highest electronegative electronegativity properties in fluorine in diatomic form with hydrogen in hydrofluoric compound. 1 electrons of hydrogen share with 1 unpaired electrons of fluorine and form sharing electron pair. The concept of the covalent bond, the sharing electron pair exists between nuclei of the both atom, but fluorine have 7 electrons in their respective outer shell. It required 1 electrons. Then fluorine tried to sharing electron pair shifting from
hydrogen to fluorine. Then electron pair slightly shifting from mean position to toward side of the fluorine. Electron have negative charge. Why this shifting of the electrons? Fluorine carries slight negative charge. In electrons move away from the hydrogen, then hydrogen carry slight positive charge, and this molecule change into dipole molecules. In HF molecules, F is slight negative, hydrogen slight positive. This is the second molecules of HF, and one end is negative, second end is a positive, then this is called dipole-dipole interactions. In the presence of the hydrogen, this dipole-dipole interactions is called hydrogen bond. Hydrogen bond. This is the hydrogen bonding between HF molecules. It is called intermolecular hydrogen bond. Then HF exists in the form of uncountable molecules, not discrete molecules. Then HF is liquid. What? HCl gas and also other. तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन्स ये होता है कि जब कोई एटम किसी अनदर एटम ऑफ अनदर एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो जो फ्लोरीन है उसकी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं किया, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया. क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि फ्लोरीन की एटॉमिक साइज स्मॉल होती है कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वह इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टेड होता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट कराता है, जिससे फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया. Then molecule change into dipole molecules, and here dipole-dipole interactions between the HF molecules in the presence of the hydrogen is called hydrogen bond. तो HF क्या है? इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. लेकिन HCl is a gas. अब HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है ना, इसको देखते हैं जरा. HCl chlorine atomic number is 70. Then size of chlorine more than to fluorine. Then electron pair not feel much attractions from the nucleus of chlorine compared to fluorine. Again, in case of the HCl molecules, chlorine effective atomic size more than to hydrogen, then sharing electron pair not much feel attractions from the nucleus of the chlorine compared to fluorine. They slightly shifting from the electron from hydrogen to Cl. Then hydrogen is also carry negative charge, positive charge, and Cl carry slight negative charge. तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है. देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन small compared to fluorine. Then here only dipole-dipole interactions, this interactions cannot be changed into H bond. यानी ये इंट्रैक्शन से अट्रैक्शन इतना सक्षम नहीं है कि वो क्या कर सके, हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सके. देन HCl इज गैस, और आपको याद होगा इन क्लास 10th HCl गैस क्या नहीं होती है, HCl not is a acidic in a nature. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी.
Electron gain enthalpy is a properties of discrete atom of the element. Means fluorine is a single atom of the fluorine atom. It have electronic configuration 2 7. First cell 1s2, second s2, second p5. It required is a 1 electrons. When fluorine accept these electrons and change into fluorine atom to fluoride ions and electronic configuration 272 2,8. Then when electrons enter in a fluorine, release energy is called electron gain enthalpy, and this value is a minus 333 kilojoule per mole. It means when the extra electrons enter in a outer shell of fluorine atom, the electron repel to each other and release of the amount of energy. This amount of energy is called electron gain enthalpy. Second is a chlorine atom of chlorine element. It also have 7 electrons in their respective outer shell. It required is a 1 electrons for completion of their octet. Then chlorine accept the 1 electrons and change from 2872 to 288 and chlorine atom to chloride ions. The amount of energy released during when extra electrons enter in an outer shell of chlorine is called electron gain enthalpy, and this value is a minus 349 kilojoule per mole. Here is the comparison between the electronegativity and electron gain enthalpy. In case of the electronegativity, in a periodic table, fluorine is the highest electronegative element. According to Pauling concept, the electronegativity of fluorine is 4.0, chlorine 3.2, bromine 3.0 and iodine 2.7. It means electronegativity decrease from fluorine to iodine due to atomic size increase. But in case of electron gain enthalpy, from fluorine to chlorine, electron gain enthalpy is increase. इसका मीन्स है दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. Electronegativity is a properties of the atom within a molecules. Example HF and HCl. Electron gain enthalpy is a property of discrete atom or single atom of the element. Why the electron gain enthalpy fluorine less than 2 chlorine, but electronegativity fluorine हायर कंपेयर टू क्लोरीन. फिर से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है. ऐसा क्यों है? अब जरा देखते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस when the extra electrons enter in a outer shell of respected atom and release amount of energy is called electron gain enthalpy. In case of the fluorine have the second is a outer shell. It means size of second outer shell is a little or small compared to chlorine, because chlorine outer shell is a third and second shell in a fluorine have 2s and 2p. Then electrons in a small volume. When the extra electrons when enter in a fluorine, then 7 electron much repel to coming electrons. तो जो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से छोटे से वॉल्यूम में थे सेकंड सेल के, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, बहुत ज्यादा रिपल करते हैं, क्योंकि वहां अवेलेबल स्पेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को वेलकम करें. तो जो एनर्जी निकलती है वो कम क्यों होती है?
कि जब इलेक्ट्रॉन्स को आप इंटर कराते हैं फ्लोरीन की आउटर सेल में तो इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन पहले से वहां पर छोटे से वॉल्यूम में है, वो उसको रिपेल कर रहे हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इंटर करता है। व्हाट इन केस ऑफ द क्लोरीन outer cell third have 3s2 3p5 and 3d vacant. It means third cell have the large volume. इसका आकार बहुत बड़ा है compared to fluorine second cell. When extra electrons enter in a outer cell, chlorine it not feel repulsion, just try to feel incoming electron in a fluorine. तो जो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है वह उतना अधिक रिपल्जन महसूस नहीं करता जितना कौन कर रहा है? फ्लोरीन कर रहा है। एंड आल्सो थर्ड सेल नियर टू न्यूक्लियस, क्योंकि 17 प्रोटॉन्स होंगे और ये 17 प्रोटॉन्स हो गया, ये आपकी थर्ड सेल हो गई है। तो इफेक्टिव साइज भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो लार्ज वॉल्यूम में रिपल्जन ज्यादा महसूस नहीं करता। वो 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो एक्सिस्ट करते हैं थर्ड आउटर सेल में है, और जो न्यूक्लियस है वो भी आसानी से उसको अट्रैक्ट कर लेता है। देन स्लाइट मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन कंपेयर टू फ्लोरीन। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों है? अरे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्क्रीट एटम की नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज विद इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ती जाएगी। तो पहले सबसे हाईएस्ट किसकी हो गई? क्लोरीन की। फिर अब थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू होगा। क्यों डिक्रीज होना शुरू होगा? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। थर्ड सेल है, फिर फोर्थ सेल आएगी, फिर फिफ्थ सेल आएगी। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन भी क्या होगा भाई? न्यूक्लियस के द्वारा कम होता जाएगा। फ्लोरीन की कितना है? अभी आपने देखा क्लोरीन की कितना है, ठीक है ना? ब्रोमीन -325 एंड आयोडीन -296 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक साइज एंड आयोनिक रेडियस। सर थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा लेते हैं। दो केस लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आउटर सेल, सेकंड क्लोरीन आउटर सेल, सर थर्ड ब्रोमीन आउटर सेल, फोर्थ एक्सक्यूज मी सर एंड आयोडीन आउटर सेल, फिफ्थ। इसका मींस एटॉमिक साइज क्या होगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है ना? आयनिक रेडिया क्या है? फ्लोरीन व्हेन एक्सेप्ट द वन इलेक्ट्रॉन्स, उसने एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो किसमें चेंज होगा भाई? फ्लोराइड में होगा। तो फ्लोरीन की एटॉमिक साइज कितना होता है? 64 पिकोमीटर। और जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा इट चेंज इनटू फ्लोराइड आयंस। तो उसकी फ्लोराइड आयंस की आयनिक रेडिया कितनी है? 133 पिकोमीटर। तो जस्ट डबल क्यों हो जाती है? अरे भाई जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंटर होता है ना तो वो डिफ्यूज हो जाता है, मींस उसका वॉल्यूम क्या होता है? थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। क्यों एक्सटेंड होता है? क्योंकि पहले 9 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 9 प्रोटॉन किसने को अट्रैक्ट करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन और आ गया ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स को, 8 इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, उससे वॉल्यूम क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो फ्लोराइड आयंस है या क्लोराइड आयंस है, उसकी साइज हमेशा क्या होगी? अपने रिस्पेक्टेड एटम से ज्यादा होगी।
trends in chemical reactivity. Fluorine is most reactive element. इसका मीन्स रिएक्टिविटी क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. Fluorine is the most reactive element and also fluorine is strong oxidizing agent. यह एक एसर्शन रीजन्स का क्वेश्चन डेवलप हो सकता है. कैसे होगा हम आपको बताते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जनरली रिएक्शंस लिखती हैं जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या फॉर्मेशन होगा? तो कॉपर डाइवेलेंट से कहां चेंज होगा? इसका क्या होगा? रिडक्शन हो गया. जिंक किस में चेंज होगा? जिंक डाइवेलेंट में चेंज होगा. इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. इस रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस. तो आप कह सकते हैं कॉपर ने कौन सा एजेंट है? जिंक का क्या कराया उसने? ऑक्सीडेशन कराया. इसलिए हम उसको क्या नाम देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है ना. तो जो ऑक्सीडेशन यदि दूसरी स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज का कराते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो कॉपर डाइवेलेंट क्या है यहां पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मींस क्या? ये आप सोच रहे होंगे ये रिएक्शंस क्यों लिखी हमने? क्योंकि ये रिएक्शंस आप क्लास 10th से देख रहे हैं. जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट solution is a blue in a color, it turn into colorless solution. This is the parameter for identification of the chemical reactions in class 10. तो जैसे ही आप ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में जिंक को मिलाते हैं तो क्या होता है? ब्लू कलर कलरलेस हो जाता है. तो आप कहते हैं केमिकल चेंज होगा. फिर पूछते हैं केमिकल चेंज में क्या होगा? तो आप कहते हैं जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद जिंक सल्फेट में चेंज हो गया है. तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. लेकिन इसका मतलब यहाँ ये नहीं है. क्या हो रहा है? तो कॉपर क्या होता है? कॉपर डाइवेलेंट से किस में कन्वर्ट हुआ? कॉपर एटम में. तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? डेफिनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा. वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? जिंक किस में चेंज होगा? जिंक डाइवेलेंट में कन्वर्ट होगा. तो जिंक ने क्या किया? ऑक्सीडेशन हुआ. किसकी प्रेजेंसी में हुआ? कॉपर की. तो कॉपर क्या है? कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि हम किसी एटम को या आयनिक स्पीशीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. क्या मींस है? मींस ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे. जरा यहां गौर से सुनना है आपको. फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. फ्लोरीन accept 1 electrons and change into fluoride ions. Fluorine accept the 1 electron change into fluoride ions. Then electron gain enthalpy is minus 333 kilojoule per mole. And chlorine accept the 1 electrons and change into chloride ions. The electron gain enthalpy here minus 349 किलोजूल पर मोल. तो हम आपसे पूछते हैं भाई बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर क्लोरीन की है. तो किसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए? डेफिनेटली क्लोरीन को होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी ज्यादा है. किसकी कम है? फ्लोरीन की. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी का सीक्वेंस लिखते हैं. किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की. किससे? फ्लोरीन की. अब यहां क्या लिखते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग पावर. किसका ज्यादा होना चाहिए था? क्लोरीन का. किसका होता है? फ्लोरीन का. ऐसा क्यों हो रहा है?
जबकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होना चाहिए था? क्लोरीन का होना चाहिए था, लेकिन होता किसका है? फ्लोरीन का होता है। ऐसा क्यों है? Why the fluorine is a strong oxidizing agent? देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे निकालते हैं। एक देखते हैं X2 इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसकी प्रॉपर्टीज है? डिस्क्रीट एटम की। तो ये मॉलिक्यूल्स है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। भाई तोड़ना होगा ना इस बॉन्ड को। क्या मिलेगा हमें? एटम मिलेंगे, 2 एटम मिलेंगे। हमें तो 1 एटम चाहिए, तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/2 का। अब ये जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका नाम क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वह किस में चेंज हो जाएगा? हैलोजन टू हैलाइड आयंस। अब जब वह हैलाइड आयंस में कन्वर्ट होगा, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग? डिसॉल्व इन वाटर इक्वस मीडिया। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? इक्वस हैलाइड आयंस में। अब जब किसी आयनिक स्पीसीज को, एटम स्पीसीज को वाटर में घोलते हैं तो कौन सी एनर्जी निकलती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। यानी आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर नॉट इज अ ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये 3 फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। ये आपके जो 3 फैक्टर हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी और हाइड्रेशन। तो आपका फ्लोरीन हो गया F2, क्लोरीन Cl2। तो सबसे पहले लिखते हैं यहां पर 1/2। 1/2 क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करेंगे। फ्लोरीन मॉलिक्यूल से 2 एटम मिलेंगे, हमें तो सिंगल एटम चाहिए ना, तो हम सिंगल का लिखेंगे 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। यहां पर क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। और यहां पर क्या लिख दे रहे हैं हम? सम। चलिए थोड़ा देखते हैं इसको। Bond dissociation enthalpy of fluorine half 79.4 kilojoule per mole and chlorine 121 kilojoule per mole। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम होती है, लेकिन क्लोरीन की क्या है? ज्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत स्मॉल साइज होती है फ्लोरीन एटम की, और 2 फ्लोरीन आपस में जब कंबाइन होंगे फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन बहुत ज्यादा होता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम होती है। अब इससे कैसे लिखेंगे? इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी 349 किलोजूल पर मोल। तो ये देखिए, ये प्लस वैल्यू है, ये प्लस वैल्यू है, ठीक है ना। अब आते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है? 515 किलोजूल पर मोल। सेकंड -381 किलोजूल पर मोल। सम -769 किलोजूल पर मोल एंड क्लोरीन 609 किलोजूल पर मोल। यानी आप एक काम कह सकते हैं कि फ्लोरीन की
केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है कंपेयर टू क्लोरीन। लेकिन जब फ्लोरीन फ्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होता है तो उसकी साइज स्मॉल होती है। जब वो वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, जब आप उस हैलाइड आयंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हैलाइड आयंस की साइज स्मॉल होने पर वह वाटर मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली पोलराइज कर देता है, बहुत हायर अमाउंट हाइड्रेशन एंथैल्पी का निकलता है। इसलिए फ्लोरीन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर केवल एक बात पर डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। केवल फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किससे, क्लोरीन से है। The hydration enthalpy of fluoride ions is 515 kilojoule per mole. But hydration enthalpy of chloride is minus 381 kilojoule per mole. Then fluorine is strong oxidizing agent compared to chlorine. तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक है ये, कभी सीक्वेंस आ जाता है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, उसके बाद फ्लोरीन और फिर आयोडीन। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है, 242.6 किलोजूल पर मोल। क्लोरीन 192.8 किलोजूल, फ्लोरीन 158.8 किलोजूल पर मोल एंड आयोडीन 151.1 किलोजूल पर मोल। तो आपके मन में आएगा व्हाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सीक्वेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। व्हाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन मच स्मॉल कंपेयर टू क्लोरीन, ऐसा क्यों रहा है, क्योंकि भाई फ्लोरीन की एटॉमिक साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। दूसरा फ्लोरीन भी वैसे ही होगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे। आउटर सेल कौन सी होती है, सेकंड होती है। तो स्मॉल वॉल्यूम होता है, एटॉमिक साइज स्मॉल होती है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होता है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी कम होगी। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होगी। जितना बॉन्ड स्टेबल होगा उतना ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। ओके, थैंक यू।